So let's solve the problem statement. At room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. So the value of R1, you may write R27, you can also write, but ठीक है, R1 is equal to 100 ohm. What is the temperature? और यहाँ पर T1 की जो वैल्यू है वो 27 डिग्री सेल्सियस है. ऐसे सही है. What is the temperature of the element if resistance is found to be 117 ohm? 117 ohm. So T2 की वैल्यू हमारी पूछी गई है. Okay. The temperature coefficient of resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4. So the value of alpha is 1.7 into 10 to the power minus 4. These details have been given. So this question is pretty straightforward. Simply आप फॉर्मूला में वैल्यूज डालो और आंसर आ जाएगा. फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है R2 is equal to R1 1 plus alpha delta T. Delta T means what? T2 minus T1. Wonderful. The value of R2 is 117 and this is 100. 1.7 into 10 to the power minus 4. T2 minus 27 degrees Celsius. This is 1.17. 1.7 into 10 to the power minus 4. T2 minus 27. प्लस 1 भी तो हुआ, इसको हम नीचे लेकर के आए तो दिस पोर्शन दिस टर्म प्लस 1 यहाँ पर गया तो क्या आएगा 0.17. 0.17 डिवाइडेड बाई 1.7 into 10 to the power minus 4. ठीक है, is equal to T2 minus 27. Can we write 0.17 as 1.7 into 10 to the power minus 1? So 1.7 gets cancelled. So 10 to the power minus 4 ऊपर गया तो 4 minus 1 comes out to be 10 to the power 3. So 1000 is equal to T2 minus 27. So hence the value of T2 is what? 1027 degrees Celsius. So this way we have got the answer of exercise 3.5. We will solve 3.6 in the same video. So in exercise 3.6, a negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter. We have got a wire of length 15 meter. And it has got cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square. इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 6 into 10 to the power minus 7
एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का मेजर किया गया वो 5 ओम हुआ। तो हमें इस वायर की जो है, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रो। तो यही फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर रो की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, रो R A अपॉन एल। ठीक है, R की वैल्यू 5 ओम, L की वैल्यू 15, 6 इंटू 10 टू द पावर -7। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो SI सिस्टम में दिए हुए हैं, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइव 15 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 5 1.5 10 to the power 8 divided by 6, 7.5 divided by 6। ठीक है, R, this is called blunder. This is called Himalayan blunder. I'm extremely sorry, guys. Please accept my apologies. मैं इसको फिर से ठीक करता हूँ। R5 A, what is A? 6 into 10 to the power -7 divided by 15। ठीक है, I'm really sorry। 30 divided by 15 into 10 to the power -7, यानी 2 into 10 to the power -7। ठीक है, और इसका ओम मीटर। So this is the answer of 3.6। ठीक है, कुछ भी नहीं था। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अपनी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। R हमने 5 ओम लिया और A की वैल्यू हमारी 6 इंटू 10 टू द पावर -7 है, डिवाइडेड बाई L। L क्या है, 15। ठीक है, ओके। क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस में आनी चाहिए ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, तो भी ये यहाँ पे जो मिस्टेक हुई वो आइडेंटिफाई हुई। ठीक है, तो एनीवेज, so let's see what problem statement 3.7 is talking about. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm, 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius. Okay, and resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. ठीक है, determine the temperature coefficient of resistivity of silver. So the value of alpha we are supposed to find. So as temperature is increasing, the value of resistance is also increasing. So value of alpha would be
पॉजिटिव, ये तो पक्की बात है। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। 2.7 2.1 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27.5, 2.7 divided by 2.1 minus 1 is equal to alpha. This one comes out to be 72.5. Can we write it 145.5? 145 divided by 2. All is well, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। 2.1 यानी 0.6 आया, 0.6 divided by 2.1, or we can write 6 upon 21, 6 upon 21, or we can write 2 upon 7, 2 upon 7, एक ही बात है ना। 0.6 upon 2.1 यानी कि 6 upon 21 और 2 upon 7 into 2 divided by 145, हमारी अल्फा की वैल्यू इस ढंग से निकल आएगी। आई होप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो 4 अपॉन अल्फा वन 103, 7 5 जा 35, 3 14 7 जा 98, 98 प्लस 3 101, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 1.015, यानी कि ऑलमोस्ट आप मान लो 3.5 समथिंग या 3.2 3.3। लेट मी सी व्हाट इज द आंसर। 3.7। एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है या कोई प्रॉब्लम है। यस 0.00, हाँ 4 अपॉन 1.015 कम्स आउट टू बी 3.9। और 0.0039, ठीक है। सो दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है। T2 माइनस T1 को हम डेल्टा टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे ये सारे। एक कोशिश करते हैं कि अगर इफ पॉसिबल 3.8 अगर हो सकता है तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। एंड नो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हमने आई गेस 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक यू।